Assalamualaikum dear students, welcome back to the online mode of learning. I am your instructor Mehpara Nadeen, and this class is for BPA the evening, and the course is Strategic Human Resource Management. We were discussing chapter number 6, design and redesign of work system. So we have already discussed the model for designing of work system. In the model of designing of work system, we have discussed one consideration or one element of what workers do, and today we are going to study the next element of the model for design of work system, that is what workers need, and the third consideration or third component of how jobs interface with other jobs. Today we are going to discuss these two more elements. So in the first element, what workers do, we discussed the element of job specification, job enlargement, job rotation, job enrichment, and vertical loading. Also, we discussed 5 core job characteristics, that were skill variety, task identity, task significance, autonomy, and feedback. Also, we discussed this job characteristic model. We discussed this already in detail. Now, moving forward, we are going to discuss basically what workers need. So हम सब ये जानते हैं कि हमारे जो वर्कर्स होती हैं उनकी जो नीड्स और वांट्स होती हैं वो आजकल के ज़माने में बहुत डिफरेंट हो चुकी हैं. ठीक है, जब भी वो कोई अपनी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैरी कर रहे हैं तो उनको सबसे पहले किसी भी वर्क डिज़ाइन में रहते हुए जो वर्कर्स हैं उनकी नीड्स एंड वांट्स को सबसे पहले जो है एम्प्लॉयर्स जो होते हैं वो कंसिडर करते हैं. सो these days we know that all employees don't have work for the same reason and nor they expect the same thing from their employers. ठीक है, तो एम्प्लॉयज़ जो है वो सिर्फ एक रीज़न की वजह से जो है वो काम नहीं कर रहे होते, और उनको अपने एम्प्लॉयर से सिर्फ एक चीज़ नहीं चाहिए. आजकल के ज़माने में उन्हें डिफरेंट चीज़ें चाहिए. ठीक है, और वो डिफरेंट चीज़ें क्या हो सकती हैं, किस फॉर्म में हो सकती हैं, वो हम आज डिस्कस करेंगे. तो जब आप डिज़ाइन कर रहे हैं कोई भी वर्क सिस्टम, तो हमारे जो वर्कर्स हैं बेसिकली वो सबसे पहले तो मोटिवेटेड रहना चाहते हैं, प्रोडक्टिव रहना चाहते हैं और हैप्पी रहना चाहते हैं अपनी जॉब को लेके. इसलिए जो हमारे एम्प्लॉयर्स होते हैं उन्होंने एक यूनिवर्सल कंसिडरेशंस बना दी हैं. हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने एक गाइडलाइन बना दी है, और वो गाइडलाइन कौन सी है, क्या है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं, कुछ कंसिडरेशंस आ जाती हैं. तो उसमें जो सबसे पहली कंसिडरेशन है, वी ऑल नो दैट कि हमारे जो वर्कर्स हैं उनके लाइफ स्टाइल्स जो है या उनके जो डेमोग्राफिक्स हैं वो बहुत वर्सेटाइल हो चुके हैं, बहुत चेंज हो चुके हैं. So the first of these consideration is the changing demographics and lifestyles of the labor market, or we can say employees. तो demographics का हम पहले तो मतलब बता देते हैं कि क्या होता है. For example, we can say that the age of the employers, the gender of the employees, and from which race they belong to. So ये सारी चीज़ें जो है वो हमारी demographics में आ जाती हैं. तो basically our organizations need to realize that employees no longer have generic needs. उनकी अब सिर्फ basic needs नहीं रह चुकी. तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन को क्या रियलाइज़ करना चाहिए, उनको ये रियलाइज़ करना चाहिए कि हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी जो नीड्स हैं वो सिर्फ जेनेरिक नहीं है या बेसिक नीड्स नहीं हैं अब. ठीक है, तो एम्प्लॉयज़ एक्सपेक्ट देयर एम्प्लॉयर्स टू अंडरस्टैंड देयर नीड्स एंड रिस्पेक्ट दैम as individuals. Also, worker needs will vary among
the different age groups, or we can say genders, races, religions, or their physical abilities, or their martial status, or their family status. तो workers की जो need है वो वेरी कर रही हैं किस लिहाज से, उनकी एज ग्रुप्स के लिहाज से, उनके जेंडर के लिहाज से, उनकी रेस के लिहाज से, या हम कह सकते हैं उनके रिलीजन के लिहाज से. तो ये सारी चीज़ें क्या हो रही हैं, ये वर्कर्स की जो नीड्स हैं और वांट्स हैं वो वेरी करती हैं ऑन द बेसिस ऑफ दीज डेमोग्राफिक्स. सो इन ऑर्डर टू परफॉर्म at their peak performance levels, employees need to remain free from the biases. So biases in hiring, or we can say treatment. तो इस तरह की जो चीज़ें हैं बेसिकली वो ये क्या कह रहे हैं कि हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो उनको उनमें जो बायसनेस होती है वो नहीं करनी चाहिए एम्प्लॉयर्स को, या फिर हायरिंग के दौरान उनको जो है बायसनेस का शिकार नहीं करना चाहिए, या उनको कॉम्पनसेशंस देनी चाहिए, तो या फिर उनके लिए कुछ एडवांसमेंट डिसीजंस प्रोग्राम्स होने चाहिए, ताकि जो डाइवर्सिटी है वर्कर्स की उसको कैटर किया जाए. सेकंड जो हमारी यहाँ पे वर्कर्स की नीड है इज़ the employees need for work-life balance. So we know that organizations also need to be more aware of employers' need for their work-life balance, and basically all employers these days, we can say that particularly young employers are far less loyal to their employers, and they need to know that there is a work life balance. अब हम जब वर्क लाइफ बैलेंस की बात करते हैं तो हम ये बात करते हैं कि जो एम्प्लॉयज़ हैं आजकल के वो ये चाहते हैं कि उनकी पर्सनल लाइफ में और उनकी वर्क लाइफ में एक बैलेंस क्रिएट किया जाए. इसी रीज़न की वजह से हम ये कह सकते हैं कि आजकल के जो यंग एम्प्लॉयज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा लेस लॉयल भी हम कह सकते हैं वो अपनी कंपनी से होते हैं as compared to the employees generations ago. तो आजकल के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो क्या हैं, वो लेस लॉयल हैं. सो बेसिकली what employers need to do, employers need to design work system that do not allow employees to have the balance they desire in their life activities, and find workers who not only are less committed to organization but who may also suffer from we can say burnouts. तो आजकल के ज़माने में जो हमारी एम्प्लॉयर्स हैं उनको ये चाहिए वो इस तरह का वर्क लाइफ जो सिस्टम है डिज़ाइन करें एम्प्लॉयज़ के लिए, जिसमें एम्प्लॉयज़ जो हैं वो एग्जॉस्ट नहीं हो, या वो कमिटेड रहें हमारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, या फिर वो इस तरह की परफॉर्मेंस जो है वो दें हमें जो कि ऑप्टिमल लेवल्स पे हो. तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं या जो हमारे एम्प्लॉयर्स हैं उन्हें क्या अंडरस्टैंड करना चाहिए, उन्हें ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि वर्क लाइफ बैलेंस जो है वो किसी भी एम्प्लॉय की लाइफ में जो है वो मेंटेन होना चाहिए. उसके लिए आजकल के जो एम्प्लॉयर्स हैं वो स्ट्रेस मैनेजमेंट के प्रोग्राम्स जो है वो इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, या फिज़िकल हेल्थ के जो प्रोग्राम्स हैं वो इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, या हम ये भी कह सकते हैं कि वेलनेस प्रोग्राम्स हैं जो कि वो इंट्रोड्यूस करा रहे हैं. एम्प्लॉयज़ असिस्टेंट प्रोग्राम्स भी हैं जो कि वो इंट्रोड्यूस करा रहे हैं. तो इस तरह के जो प्रोग्राम्स हैं उनको इंट्रोड्यूस करने का मकसद क्या होता है, उनको इंट्रोड्यूस करने का मकसद ये होता है कि एम्प्लॉय की जो वर्क लाइफ बैलेंस है वो बैलेंस्ड रहे, और जो उसकी एक्टिविटीज़ हैं वो भी बैलेंस्ड रहे. तो ये जो है ये हमारा क्या है जी, हमारा दूसरा कंसिडरेशन है किस में कि हमारे जो वर्कर्स हैं उनकी नीड्स क्या हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं.
पहला जो था वो था जी हमारी डेमोग्राफिक, चेंजिंग डेमोग्राफिक्स और लाइफस्टाइल। सेकंड था जी हमारे एम्प्लॉय नीड फॉर वर्क लाइफ बैलेंस। अब थर्ड कंसिडरेशन क्या है जी वर्कर्स की नीड की। जो थर्ड कंसिडरेशन है वो है जी कि हमारी एम्प्लॉयज़ जो है दे नीड टू बी द रिप्रेजेंटेटर्स, या फिर जो उनकी वॉइस है वो इम्पॉर्टेंट हो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में रहते हुए। इसका मतलब ये है कि हमारे जो हाईली स्किल्ड वर्कर्स हैं दे नीड टू हैव फ्रीडम इन देयर वर्क्स। यहाँ पे एक टर्म उन्होंने यूज़ की हुई है कि जो हमारे हाईली स्किल्ड या ट्रेन वर्कर्स हैं दे shouldn't be micromanaged। माइक्रो का मतलब है कि लैक ऑफ फ्रीडम नहीं होनी चाहिए, उनके पास फ्रीडम होनी चाहिए। तो जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं सबसे पहले जो कि हमारे हाईली स्किल्ड एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि उनकी रिप्रेजेंटेशन अपनी ऑर्गेनाइजेशन में या फिर उनकी जो वॉइस है उसको वैल्यू किया जाए। सो मोर हाईली स्किल्ड एंड ट्रेन वर्कर्स दे डू नॉट एक्सपेक्ट टू बी माइक्रो मैनेज्ड। लैक ऑफ फ्रीडम जो है वो नहीं होनी चाहिए। दे मस्ट गिव द फ्रीडम to raise their voices, to raise their representation in an organization. So basically they expect to use their training and experience to make contribution to the organization, and also employees expect the organization to listen to their concerns. Also एम्प्लॉयज़ की जो इनपुट्स है या फिर जो उनकी मोटिवेशन है वो जो है उसको यूटिलाइज़ किया जाए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, या ह्यूमन रिसोर्स की जो कैपेबिलिटीज़ हैं उनको इनकरेज किया जाए किसी भी वर्क रिलेटेड इशू में। तो ये जो है ये हम कहते हैं कि जी हमारी बेसिकली एक और इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो वर्कर्स की नीड है, वांट्स हैं। सो यहाँ पे हम देखेंगे स्लाइड में कि एम्प्लॉयज़ नीड रिप्रेजेंटेशंस जो हैं दे से दैट वर्कर्स वांट टू बी इन्वॉल्व्ड इन वर्क रिलेटेड इश्यूज एंड एक्सपेक्ट ऑर्गेनाइजेशंस टू लिसन टू देयर कंसर्न्स। देन वी से एक और कंसिडरेशन जो है, जो फाइनल कंसिडरेशन है वो है जी किस चीज़ की। वो ये कहते हैं कि हमारे जो वर्क सिस्टम है उसमें जो वर्कर्स की नीड है उसमें सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है जी वर्क प्लेस सेफ्टी। मतलब ये कि किसी भी किस्म की जो हैज़र्डियस वी कैन से जो जॉब है या फिर एक्टिविटीज़ हैं उनसे हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो जो है वो रिफ्रेन रहें, ठीक है। जो या उनको जो वर्क इन्वायरमेंट है वो इस तरह का दिया जाए जिसमें वो कंफर्टेबल हों और उनकी जो वर्क प्लेस सेफ्टी है उसको इंश्योर किया जाए, या फिर ऑन जॉब इंजरीज से उनको दूर रखा जाए। So basically work systems and job need to be designed to be consistent with employee physical capabilities and allow them to perform their jobs without any risk। किसी भी किस्म का जो रिस्क है हमारे एम्प्लॉयज़ के लिए वो जो है वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में एलिमिनेट किया जाए। इस तरह के रिस्क को जब एलिमिनेट किया जाएगा तो दैट इज़ ऑल्सो द नीड ऑफ द वर्कर। तो ये जो है ये हमारी कुछ वर्कर्स की जो नीड्स थी और किस तरह से इस तरह की नीड्स को ऑर्गेनाइजेशन इंश्योर कर रही हैं, या उनकी किस तरह के प्रोग्राम्स हैं। जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि कुछ सेफ्टी प्रोग्राम्स हैं, कुछ हमारे इस तरह की एक्टिविटीज़ के प्रोग्राम्स हैं, फ़िज़िकल हेल्थ के प्रोग्राम्स हैं, या हमारे वेलनेस के प्रोग्राम्स हैं। तो बेसिकली हमारी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इस तरह के प्रोग्राम्स को इंश्योर करें और इस तरह के प्रोग्राम्स को वो इंश्योर भी करें और उसके साथ साथ मेक आवर एम्प्लॉयज़ feel comfortable in the organizations। So
वी कैन से कि किसी भी वर्क सिस्टम में रहते हुए सबसे पहले हमने ये देखा कि हमारी जॉब की करेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, वर्कर्स क्या कर रहे हैं, और वर्कर्स की जो बेसिकली जो जॉब एक्टिविटीज़ जो हम कह सकते हैं करेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या हैं, और किस तरह से वो लोग जो हैं वो अपनी जॉब स्पेशलाइजेशन को देखते हैं, जॉब इनलार्जमेंट कैसे करते हैं, या रोटेशंस किस तरह से इम्पॉर्टेंट हैं, इनरिचमेंट कैसे हो रही है, ये वर्टिकल लोडिंग किस तरह से हो रही है, ये भी हमने डिस्कस कर लिया। और हमने जॉब कैरेक्टरिस्टिक्स को भी डिस्कस कर लिया, हमने एक मॉडल को भी डिस्कस कर लिया इसके अंदर, और हमने वर्कर्स की नीड्स एंड वांट्स को भी डिस्कस कर लिया। तो यहाँ पे हमारे पास जब आप पढ़ेंगे इस टॉपिक के अंदर ही कुछ और चीज़ें भी कुछ इस तरह के केसेस हैं जो कि साथ के साथ दिए हुए हैं। मेरा ख्याल है आप लोग जब गो थ्रू करते होंगे इस चैप्टर को तो खुद ही आप लोगों को समझ आ जाती होगी कि इस चैप्टर में डिफरेंट जो केसेस हैं वो दिए हुए हैं। आई वांट यू स्टूडेंट्स टू रीड आउट दीज केसेस वेरी केयरफुली, बिकॉज इन्हीं केसेस से आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग्स जो हैं वो डेवलप हो रही होती है रिगार्डिंग द बेसिक टॉपिक। सो इसीलिए मैं आप लोगों को ये भी कह रही होती हूँ कि आप जो है वो असाइनमेंट्स मुझे भेज दें, लेकिन मुझे असाइनमेंट्स आप लोगों की अभी तक नहीं मिली हैं। बहुत कम बच्चों की मुझे असाइनमेंट्स मिली है। मैं बार बार आप लोगों को ये कह रही हूँ कि असाइनमेंट्स में कॉन्शियस हो जाएं, लेकिन आप लोग नहीं हो रहे हैं। तो अगर आप लोग नहीं करेंगे असाइनमेंट्स को तो आपके सेशनल्स या आपके फाइनल्स में से ऑब्वियसली जो मार्क्स हैं वो डिडक्ट होंगे। तो आप लोगों पे डिपेंड करता है। मुझे असाइनमेंट चाहिए एक और भी जिसमें ये जो केसेस हैं 245 पे कुछ केस है, एक केस है, इससे पहले जो है जो चैप्टर के स्टार्ट में है वो केस है, 241 पेज पे जॉब रोटेशन का एक केस है। इसको जो है आप पढ़ के मुझे अपनी अंडरस्टैंडिंग जो है वो असाइनमेंट में लिख के भेजेंगे कि आपकी अपनी असाइनमेंट क्या, आपकी अपनी असेसमेंट क्या है इन केसेस को लेके। So I think that is all for today, and tomorrow we are going to discuss the third element of the redesigning of system. So that is how job interface with other job, and also we are going to discuss some we can say strategic work design, कि स्ट्रैटेजिक वर्क डिज़ाइनिंग कैसे होती है, एक्शंस क्या होते हैं उसको भी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आप लोगों की जो अटेंडेंस है वो आप लोग उसी तरीके से मुझे देंगे जैसे आपको जैसे ही वीडियो मिलती है आप अपनी अटेंडेंस जो है वो शेयर कर देंगे मेरे साथ। उसी की बेसिस पे आप लोगों की अटेंडेंस मार्क हो रही है। जो स्टूडेंट्स नहीं ले रहे हैं लेक्चर उनकी अटेंडेंस मार्क नहीं हो रही है। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। आई नीड योर असाइनमेंट फॉर बाय फ्राइडे at any cost. So be sure कि आप लोग मुझे ये जो है असाइनमेंट सेंड कर दें, अपने CR को सेंड कर देंगे, he will forward me, and अपनी GR को सेंड कर देंगे, she will forward me. Thank you so much for today, and Allah Hafiz.